अगर वाकई तुम सच्चे हो तो हमारा अजाब ले आओ, हम भी देखें तुम्हारे रब की ताकत। ये बात है उस कुरान की जिसमें ये आयत नाजिल हुई, जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जो दिलों को हिला देती है। وأكما عاد فأهلكوا برصيحة صرصورة عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى اور قوم عاد کو ایک سخت ٹھنڈی اور نہایت تیز اندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ برسات رات اور 8 دن لگاتار چلا دیا تو تم انہیں اس میں گرے ہوئے دیکھتے جیسے کھجور کے کھوکھلے دانے۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ سوچئے، آسمان بالکل صاف ہے، صحرا خاموش ہے، اور ایک قوم اپنی بلند عمارتوں کے درمیان کھڑی ہنس رہی ہے۔ انہیں یقین ہے کہ یہ زمین ان کی ہے، یہ ہوا ان کی ہے، اور طاقت ان کا مقدر ہے۔ وہ فخر سے کہتے ہیں کوئی نہیں ہے یہاں۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اور بالکل اسی لمحے آسمان نے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آج میں آپ کو کوئی افسانہ نہیں سنا رہی، یہ قرآن کی ایک زندہ چیخ ہے۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی، جب غرور نے اپنی قبر خود کھو دی۔ یہ کہانی کسی خاندر کی نہیں، کسی دفن شدہ ماضی کی نہیں، یہ کہانی آج کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ آج ہم قرآن کی ان آیات کے قریب جا رہے ہیں جو صرف لفظوں میں نہیں بلکہ ہوا میں چیخ بن کر اتری تھے۔ یہ کہانی ہے طاقت کے گھمنڈ کی اور اللہ کے فیصلے کی، ایسی قوم کی جو اپنی طاقت پر اتنا یقین کرتی تھی کہ رب کو بھول بیٹھی، اور پھر جب ہوا اٹھی تو نہ قلعہ کام آیا، نہ محل، نہ لشکر۔ ناظرین، آج آپ صرف ایک واقعہ نہیں سنیں گے بلکہ اپنے لیے ایک سوال لے کر جائیں گے۔ کیا ہم واقعی اپنی طاقت کو رب کی نعمت سمجھتے ہیں یا اپنا کمال؟ آئیے اس خاموش صحرے میں اترتے ہیں اور سنتے ہیں قوم عاد کی وہ کہانی جو قرآن نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھی۔ قرآن نے قوم عاد کا ذکر بار بار کیا، سورہ فجر اور قوم سورہ عاد ہود، کو ایک سخت سورہ احقاف، ٹھنڈی اور نہایت سورہ حقہ۔ تیز اندھی کے ذریعے پیغام ہلاک کر ایک ہی دیا ہے۔ گیا۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ جب طاقت ایمان سے خالی ہو جائے تو وہ نعمت نہیں، آزمائش بن جاتی ہے۔ قوم عاد عرب کے جنوبی حصہ میں احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جس کا خواب آج کی دنیا دیکھتی ہے، طاقتور جسم، لمبی عمریں، عظیم عمارتیں، زرخائز زمین اور بے مثال شان و شوکت، مگر انہوں نے شکر کے بجائے غرور کو چنا۔ دور دور تک پھیلا ہوا صحرا تھا جہاں رائد بھی ان کے قدموں سے ڈرتی تھی۔ قوم عاد کے مرد غیر معمولی قد و قامت کے مالک تھے، بازو فولاد جیسے چاتی غرور سے تانی ہوئی اور آنکھوں میں ایک ہی سوال، ہم سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے یہاں۔ وہ ستونوں والے شہر بناتے تھے، بادلوں کو چیرتے ہوئے محل کھڑے کرتے تھے۔ یہ بات ہے اس قرآن کی جس میں یہ آیت نازل ہوئی، جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ وأكما عاد فأهلكوا برصيحة صرصورة عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى اور قوم عاد کو ایک سخت ٹھنڈی اور نہایت تیز اندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ برسات رات اور 8 دن لگاتار چلا دیا تو تم انہیں اس میں گرے ہوئے دیکھتے جیسے کھجور کے کھوکھلے دانے۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ سوچئے، آسمان بالکل صاف ہے، صحرا خاموش ہے،
और एक कौम अपनी बुलंद इमारतों के दरमियान खड़ी हंस रही है। उन्हें यकीन है कि ये जमीन उनकी है, ये हवा उनकी है और ताकत उनका मुकद्दर है। वो फख्र से कहते हैं, कोई नहीं है यहाँ। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? और बिल्कुल उसी लम्हे आसमान ने जवाब देने का फैसला कर लिया। आज मैं आपको कोई अफसाना नहीं सुना रही, ये कुरान की एक जिंदा चीख है। ये कहानी है कौमे आद की, जब गुरूर ने अपनी कब्र खुद खोदी। ये कहानी किसी खानदर की नहीं, किसी दफन शुदा माजी की नहीं, ये कहानी आज की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। आज हम कुरान की उन आयत के करीब जा रहे हैं जो सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि हवा में चीख बनकर उतरी थे। ये कहानी है ताकत के घमंड की और अल्लाह के फैसले की। ऐसी कौम की जो अपनी ताकत पर इतना यकीन करती थी कि रब को भूल बैठी, और फिर जब हवा उठी तो ना किला काम आया, ना महल, ना लश्कर। नाजरीन, आज आप सिर्फ एक वाकया नहीं सुनेंगे बल्कि अपने लिए एक सवाल लेकर जाएंगे। क्या हम वाकई अपनी ताकत को रब की नेमत समझते हैं या अपना कमाल? आइए इस खामोश सहरे में उतरते हैं और सुनते हैं कौमे आद की वो कहानी जो कुरान ने कयामत तक के लिए जिंदा रखी। कुरान ने कौमे आद का जिक्र बार बार किया। सूरह फजर और कौम आद को एक सख्त, ठंडी और निहायत तेज अंधी के जरिए हलाक कर दिया गया। तो क्या तुम उनमें से किसी को भी बाकी देखते हो? जब ताकत ईमान से खाली हो जाए तो वो नेमत नहीं, आजमाइश बन जाती है। कौम आद अरब के जुनूबी हिस्से में अहकाफ के इलाके में आबाद थी। अल्लाह ने उन्हें वो सब कुछ दिया जिसका ख्वाब आज की दुनिया देखती है। ताकतवर जिस्म, लंबी उम्रें, अजीम इमारतें, ज़रख़ाइज़ ज़मीन और बेमिसाल शान और शौकत। मगर उन्होंने शुक्र के बजाय गुरूर को चुना। दूर दूर तक फैला हुआ सहरा था जहाँ रायत भी उनके कदमों से डरती थी। कौमे आद के मर्द गैर मामूली कदोकामत के मालिक थे। बाजू फौलाद जैसे छाती गुरूर से तानी हुई और आंखों में एक ही सवाल, हमसे ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं है यहाँ। वो सुतूनों वाले शहर बनाते थे, बादलों को चीरते हुए महल खड़े करते थे। उनके घर बहुत बुलंद और वासी होते थे, मजबूत पत्थर और पक्की मिट्टी से बनाए जाते। कुछ इमारतें सुतून पर कायम होती थी, इसीलिए कुरान में उनकी नस्ल को इराम ज़ातुल इमाद कहा गया। घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, कुव्वत दिखाने के लिए बनाए जाते। वासी शहरी नक्शा, खुली सड़कें और मरकाजी इमारतें। उन्हें अपनी इमारतों पर गुरूर था। वो कहते हैं, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो? हम पहाड़ों को तराश कर अपने महल बनाते हैं। बताओ, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? रात के अंधेरों में कौमे आद के घरों की रोशनी ऐसे चमक रही होती है जैसे जमीन पर सितारे बिखरे हो। हर चिराग एक नुक्ता रोशनी रेत के तीलों पर चमकते हुए दूर से पूरा शहर आसमान का अक्स लगता है, मगर खामोश और बेआवाज। ये थी कौमे आद। बुकौती इसके बारे में लोग कहते थे कि दुनिया में इस जैसा कोई और नहीं। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर दूर तक चमकती थी, गोया उनका शहर जमीन पर रखा हुआ एक ताज हो। उनके घर सुटूनों पर खड़े थे, इतने ऊंचे कि घोड़ा और सवार सीधा अंदर जा सकता था। उनके बर्तन पत्थर के होते थे, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाता। उनके बच्चे छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। बच्चे छोटी उम्र में ही पत्थर उठा लेते हैं, ये भी पहाड़ों को झुकाने वाले पैदा हुए हैं। उनके बच्चे भी पत्थर उठा लेते थे। अभी हाथ नाहे थे, मगर घमंड उनके दिलों में बड़ा होता जा रहा था।
खेल के दौर में भी वो जमीन से पत्थर उठाकर ताकत दिखाने की कोशिश करते, जैसे ये उनकी विरासत हो। बुजुर्ग उन्हें देखकर कहते थे, यही तो हमारी कुव्वत की निशानी है, हमारी नास्लें कमजोर नहीं होंगी। वो बच्चों के मासूम हाथों में पत्थर देखकर खुश होते और अपनी ताकत पर और ज्यादा घमंड करने लगते। उन्हें क्या पता था कि जिस पत्थर को वो कव्वत समझ रहे हैं, उसी जमीन पर एक दिन उनके बच्चे बेजान गिर जाएंगे, और जो घमंड बुजुर्ग सिखा रहे थे वही उनकी नस्लों के लिए तबाही का सबब बन जाएगा। इस कौम का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान बाड़ी के दरमियान खादे होकर दोनों हाथ फैला देते और हंसी के साथ कहते, ये हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग महफिलों में फक्र से कहते हैं, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, बताओ हमें कौन रोक सकता है। जो वो तूफान को दूर से आता देखते तो हंस कर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। हमारे साथ है ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। मगर उन्हें क्या पता था कि जो हवा आ रही है वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। उनकी महफिलों में अल्लाह का जिक्र नहीं होता था। कमजोरों का मजाक, मजलूमों पर जुल्म और अपनी ताकत पर तालियां होती थे। वक्त के साथ गुरूर ने अकीदे की जगह ले ली। हर चौक में बट, हर घर में पत्थर के माबूद। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने इस कौम की तरफ अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो रोज बाजारों, महलों और दरवाजों पर जाकर कहते, जिसने तुम्हें जमीन दी, ताकत दी, मेरी इज्जत दी। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम उसके एहसान भूल गए हो? आए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें जमीन दी, ताकत दी, इज्जत दी। क्या तुम उसके मुकाबले में तकब्बुर करोगे? क्या तुम उसके एहसानत भूल जाओगे? ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद मैं तुम्हारी नहीं। खैर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रब के गजाब से बच जाओ, वो रब जो सब ताकतों का मालिक है। ऐ हुड, तू हमें डराता है। हम वो लोग हैं जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हैं। मगर कौम हंसी, तंज और मजाक से जवाब देती। सरदार कहते हैं, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। लोग रास्ता बदल लेते, कहीं अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में ना आ जाए। साल गुजारते गए, नबी समझाते रहे, कौम हंसती रही। बच्चे उनकी नकलें उतारते, औरतें कहती, खुद तो बस कहानी सुनाने वाला है, इसे अपनी बातों पर खुद भी यकीन नहीं। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहाँ सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कुदरत का निजाम देखो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। ऐ मेरी कौम, अल्लाह के आगे झुक जाओ। क्या एक इंसान हमें रास्ता दिखाएगा? क्या हमारे बाप दादा गलत थे? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, कुदरत का निजाम देखो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर सरदार हंसी के साथ बोले, अजाब आए भी तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। अल्लाह के आगे झुक जाओ। हम पहाड़ों पर चढ़कर बादल पकड़ लाएंगे। हम किसी रब के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं। तुम्हारे गुनाह तुम्हें उस अंजाम की तरफ ले जा रहे हैं जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सरदार बोले, अगर सच्चे हो तो अजाब ले आओ। ये सब जिद नहीं थी, ये अल्लाह को चैलेंज था। अगर वाकई तुम सच्चे हो तो हमारा अजाब ले आओ, हम भी देखें तुम्हारे रब की ताकत। तुमने खुद अपने अंजाम को आवाज दी है। अब तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कोई नहीं। खजूर के दरख्त सूख गए, जो पहले साया देते थे, जो पहले फल से झुकाए रहते थे, अब खोखले तनों की तरह खामोशी से खड़े थे। जमीन बेजान हो चुकी थी, हवा में जिंदगी की नमी नहीं रही थी, और हर चीज ये कह रही थी कि रहमत रुक चुकी है। मगर फिर भी दिल अल्लाह की तरफ ना झुकाए। ये तो घमंड पानी के साथ के लिए वो मर कहने गया। लगे, हम अपने माबूदों के पास जाकर दुआ करेंगे, हम हमारे वो जरूर मबूद के पानी पास जाएंगे, बरसाएंगे। वो पानी बरसाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। हुद,
हमें लगता है तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। तुम अजीब बातें करते हो। 3 साल तक पानी की एक बूंद को तरस गए। पानी की सख्त कमी पड़ने पर कौमे आद अपने माबूदों के पास ऊंट और घोड़े साथ लेकर निकली। वो समझते थे कि ये उनके खुदा है जो बारिश बरसा सकते हैं, जो जमीन को जिंदा कर सकते हैं। वहां पहुंचकर वो झुक गए, इबादत करने लगे, दुआएं मांगने लगे और अपनी आस उन बेजान बूटों से जोड़ ली। लेकिन वो भूल गए थे कि पानी भी अल्लाह के इख्तियार में है। जानवर जमीन सूंघते रहे। पहले साल बोले, ये मामूली बात है। ये मामूली बात है, हम ताकतवर हैं। हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये मामूली बात है, हम ताकतवर कौम है। प्यास ने जुबानें सूखा दे, जानवर गिरने लगे। तीसरे साल कौम की हंसी, उनका फक्र, उनकी आवाज सब खामोश हो गई। लेकिन वो भूल गए थे कि पानी भी अल्लाह के इख्तियार में है। जानवर जमीन सूंघते रहे, बच्चे माँ की गोद में बिलखते रहे, औरतें आसमान की तरफ देखकर खामोशी से रोती रहीं। नदियां सूख गईं, कुएं बेजान हो गए। और जमीन ऐसी फटने लगी जैसे अपना दर्द बयान कर रही हो। हर सांस बोझ बन गई, हर दिन इम्तिहान बन गया। मगर फिर भी उनके दिल अल्लाह की तरफ न झुके। ये मामूली बात है। फिर आसमान पर 3 बादल जाहिर हुए, लाल, सफेद और सियाह। एक फरिश्ते ने पुकारा, इनमें से एक बादल चुनो। काला बादल, उसमें पानी है। मगर उन्हें क्या पता था कि उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी और तेज हो गई। लोग खुशी से नाचने लगे। बारिश आ गई, मगर वो पानी नहीं था, वो अजाब का तूफान था। मगर उन्हें क्या पता था कि ये बादल रहमत के नहीं। ये सुनकर कौमे आद के सरदार ने आसमान की तरफ देखा और घमंड के साथ कहा, हमें वही काला बादल चाहिए जो सबसे ज्यादा भरा हुआ लग रहा है, ताकि जोरदार बारिश हो और जमीन एक ही बार में भर जाए। हमें वही काला बादल चाहिए जो भरा हुआ लग रहा है, ताकि जोरदार बारिश हो और जमीन एक ही बार में भर जाए। उन्हें क्या पता था कि जो बादल उन्हें रहमत लग रहा था वो असल में अजाब था। जब वो काला बादल उनके शहर के ऊपर आकर ठहरा तो बारिश नहीं हुई, बल्कि उसमें से सख्त, ठंडी और दहाड़ मारने वाली हवा निकालने लगी। हवा जो रुकती नहीं थी, हवा जो रहम नहीं करती थी, हवा जो घर, महल और घमंड सब कुछ उखाड़ कर ले जा रही थी। उनकी चीखों में बेबसी थी, बेआसरा पान था। बच्चे बिलबिलाने लगे, सूखे होंठ कांप रहे थे, माँ की गोद में लिपाट कर जिंदगी मांग रहे थे। हर तरफ खौफ ही खौफ था। हवा की दहाड़ हर आवाज को दबा रही थी और हर घर में सिर्फ मौत का इंतजार रह गया था। और फिर 7 रात और 8 दिन तक कौमियात सिर्फ गिरती रही, बिखरती रही और आखिर में ऐसे हो गई जैसे खजूर के खोखले दाने। जो बादल उन्हें जिंदगी का पैगाम लग रहा था वही उनकी तबाही का फैसला बन गया। ये वो लम्हा था जब घमंड टूट चुका था, मगर वक्त खत्म हो चुका था। बच्चे औरतों की गोद में रो रहे थे, उनकी मासूम आंखों में समझ से परे खौफ था। छोटी छोटी उंगलियां माँ के फटे हुए कपड़ों को ऐसे पकड़ रही थी जैसे वही आखिरी सहारा हो। उनकी सिसकियों में भूख की जलान भी थी, प्यास की जलान भी और अनजाने खौफ का बोझ भी, जो उनके नाने से सीने को दबाया जा रहा था। औरतें उन्हें सीने से लगाकर अपनी सारी ताकत लगा रही थी, जैसे अपने जिस्म से उन्हें हवा से भी बचा लेंगी।
उनकी आंखों से बहते आंसू रेत में गिरकर पल भर में गम हो जाते थे। वो दुआएं मांग रही थी, लेकिन हवा का शोर इतना सख्त था कि उनकी हिचकियों भरी आवाज भी आसमान तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस लम्हे माँ को एहसास हो चुका था कि मदद का वक्त गुजर चुका है और सिर्फ खामोशी बाकी रह गई है। वो हवा नहीं थी, वो चीख थी, वो गजब था, वो फैसला था। 7 रातें और 8 दिन घर बिखर गए, महल रायत बन गए। ताकतवर जिस्म खजूर के सूखे तनों की तरह जमीन पर गिरते चले गए। कोई बच ना सका, कोई ताकत काम ना आई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और चंद ईमान वाले महफूज रहे। जब हवारू के कौम आद सिर्फ एक याद रह गई, रेत के नीचे दफन एक सबक। वो कौम जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, अल्लाह ने दिखा दिया, वो जो हवा को भी लश्कर बना दे। ये कहानी सिर्फ कौम आद की नहीं, ये मेरी और आपकी भी है। क्योंकि जब अल्लाह की पाकर आती है तो ना ताकत, ना दौलत, ना टेक्नोलॉजी किसी को बचा सकती है। ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे शहर इराम दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर कि ताकत और इज्जत सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है, और जब इंसान हुरूर करता है अल्लाह अपनी नेमतें छीन लेता है। यही है कौम आद की पूरी दास्तान। कौम आद का अंजाम हमें सिर्फ डराता नहीं बल्कि जगाता भी। ये याद दिलाता है कि ताकत जब शुक्र के बगैर हो तो वो रहमत नहीं हलाकत बन जाती है। आज हम भी बुलंद इमारतें बनाते हैं, आज हम भी अपनी ताकत पर नाज करते हैं, मगर सवाल वही है, क्या हम अल्लाह को याद रखते हैं? अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने इसमें अपने लिए कोई सबक महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, ताकि हर दिल तक कुरान का ये पैगाम पहुंच सके। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आज की कहानी ने आपको किस बात पर सोचने पर मजबूर किया। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कुरानी वाकयात, दिल को हिला देने वाली दास्तानें और ईमान को जगा देने वाला कंटेंट, तो चैनल इस्लामिक वर्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। नाजरीन, अगला वाकया भी अल्लाह के ऐसे अजाब से मुताल्लिक है जो इंसान को हिला कर रख देता है। उस हकीकत को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक और कुरानी हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज।